Today I will discuss here the electronic configuration. This is the most important and very interesting topic. These are learning objectives. The electronic configuration. What is electronic configuration? The distribution of electrons around the nucleus in various shell and subshells according to their increasing energy. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में तकसीम करने हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स एंड सबशेल में. ओके, this is a nucleus, and this is first shell is called a K shell, L shell, M and N shell. Now discuss one by one. The first energy level is K shell. It has the lowest energy. The second energy level is L shell. It has a more energy than K shell. The third shell is M shell. It has more energy than K and L shell. The fourth energy level is N shell. It has a more energy than K, L, M and so on. And the first shell accommodates 2 electrons, second 8 and then 18 and 32. We apply the formula of 2n square. तो हम ये क्यों अप्लाई करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज़ गिवन बाय 2n स्क्वायर. इस फार्मूले के ज़रिए हमें पता चलेगा फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने, थर्ड एंड फोर्थ. द फर्स्ट शेल n इज़ द नंबर ऑफ शेल. तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी फर्स्ट शेल के लिए 1n स्क्वायर. द वन वंस आर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे? 2. द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीज. यहाँ 2 लिख दें. 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8. सेकेंड शेल अकोमोडेट 8 electrons. Now what is an orbit? An orbit is a fixed path along which electrons revolve around the nucleus of the atom. Thus, all atoms particularly revolve in an orbit. Okay, this is a hydrogen. Hydrogen having one orbit, and hydrogen each one. इसका atomic number क्या है? 1. It's mean 1 electron and 1 proton is present. Okay, हम orbit की इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहे हैं? इन ऑर्बिट्स में. तो फर्स्ट शेल में क्या हम लिख देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन. हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2. ठीक है, एंड हैविंग हीलियम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे हम इसमें लिख देंगे. ठीक है, द फर्स्ट शेल हैविंग हीलियम, द फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन. Now what is a shell? The shells are the main energy level that electron can occupy. The shells are represented by circles around the nucleus and they are counted from the center outward as shown in figure. This is a figure. ये center में क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस है. ठीक है, फिर the number of electrons that a shell can accommodate is given by 2n square, where n is the shell number. Now the K shell can accommodate 2 electrons, L shell can accommodate 8 electrons, M shell can accommodate 18 and N shell can accommodate 32 electrons. Now what is a subshell? A shell also consists of subshell. Number of subshell in a shell is equal to its n value. n value का क्या मतलब है यहाँ? n value mean कि this is first shell, तो उसके लिए हमने 1 लिखना है. shell name क्या था? K. और इसमें कितने subshell present होंगे? Only 1 subshell. The value of the n value, n mean number of shell 2 and name is shell name is L and having a 2 subshell S and P. The third subshell
and the shell name is KM and subshell S, P and D. आप फ़ौरन ये देख लेंगे नंबर ऑफ शेल कितने हैं 1, तो इसके पास 1 ही सब शेल है. 2 नंबर ऑफ शेल, तो इसके पास 2 सब शेल एस पी. 3 नंबर ऑफ शेल्स एंड सब शेल एस पी एंड डी. 4 नंबर ऑफ शेल, द 4 सब शेल एस पी डी एंड एफ. और इसमें शेल नेम क्या होगा, 4th शेल कौन सा होगा, एन. Okay, the electrons contribute in subshell. The S always having 2 electrons. The first energy level of K shell has only 2, 1 subshell, and S subshell having 2 electrons, P having 6, and D having 14, and F having 10 and F having 14 electrons. ओके, हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं S, P, D and F. S 2 electrons, P 6, D 10 and F 14. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस में होगी. The subshell, this is the shells. The subshell S maximum number of electron 2, P maximum number of electron 6, D maximum electron 10 and F maximum electrons or maximum number of electrons 14. A subshell is this is also the definition of subshell. Another definition, a subshell is a subdivision of electron shells separated by electron orbits. Subshell are labeled as P, D, F, inner. This is the rule saying the electrons will fill up the first 1s orbit first, then 2s, then 2p, and then 3s, then 3p. Okay, this is a 1s, 2s, 2p, 3s. ये किस फॉर्म में हमने इसको फिल करना है, एनर्जी लेवल के बेस पर. 1s फर्स्ट जो है सब शेल, इसकी एनर्जी लेवल बहुत कम है तो इसलिए फर्स्ट फिल होगी. देन सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ. नेक्स्ट is this is also the shells and subshell. देखिए यहाँ सब शेल्स एंड शेल को दिखाया हुआ है कि M, K, L, M, N and this is energy levels. Okay, in subshell S, P, D and F maximum number of electron 2, 6, 10 and 14. This is the principle of for filling of the distribution of electron. The first shell having 1 subshell, तो 1s को हम पहले फिल करेंगे. 2 का क्या मतलब है, सेकेंड शेल है और इसमें कितने सब शेल हैं, S एंड P. देन 3s, P, D, 4s, P, D एंड F. और इसको इस फॉर्म में हम फिल करेंगे. दिस इज़ द ऑर्डर फॉर, दिस इज़ द ऑर्डर 1s, 2s, 2p. लास्ट लाइन में ये देखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. तो हमने इस ऑर्डर की बेस पे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है. जहाँ s होंगे वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे. देन p जहाँ होंगे वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, d 10 एंड f 14 इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट. The electronic configuration chart, the hydrogen atomic number is 1 and its electronic configuration 1s1. जितने atomic number होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं. अगर हम एलिमेंट्स की बेस पर करेंगे तो हम जितने उसके इलेक्ट्रॉन होंगे बस वहाँ तक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टॉप कर देंगे. ठीक है, इसका 1s हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s1 इस फॉर्म में लिख देंगे. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है,
Next is helium. Helium electronic configuration chart as hold up to the 1s. helium क्या अटोमिक नंबर है 2 एंड इलेक्ट्रॉन जितना अटोमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो 1s2 हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम. सोडियम atomic number is 11 and it's mean having a 11 electrons. तो हम कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1s, देन 2s 2p, then 3s. Okay, 1s having 2 electron, then 2s having 2 electron, 2p having 6 and 3s having 1 electron. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो हम पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे 2, सेकंड में 2 2 2 प्लस 4 और p में 6, 10 हो गया. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट 1, तो लास्ट 1 में हम क्या लिख देंगे 3s1. तो ये जितने भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और यहाँ तक स्टॉप कर देंगे. नेक्स्ट है पोटाशियम. पोटाशियम एटॉमिक नंबर इज़ 19. हमने पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 हमने उतनी देर तक लिख लेना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. 3p6 एंड 4s1. 4s1 इट्स मीन कि अब ये टोटल करेंगे कितने हैं 19 electrons. And the electronic configuration of oxygen. Oxygen के electronic configuration the atomic number is 8. तो हम कैसे लिखेंगे 1s. पहले हमने सबसे जो लो एनर्जी सब शेल्स है उसको फिल करना है. वो क्या 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन. अब इसे प्लस करें कितने हो गए हैं 2 2 4 एंड 2p. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट 2 2 4. तो इसका एटॉमिक नंबर है 8 हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन. तो 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी 4, ठीक है. तो 2p हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज़ अ होम टास्क और इसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है. इसको बार बार लिख कर देखना है और इसके ये सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स नेम है, सिंबल अटोमिक नंबर है. जितना अटोमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस यू.